سے کسی معجزے کو بھی ان لفظوں سے یہ نہیں مانتے جن لفظوں سے قرآن میں درج ہے. منکر تو نہیں ہے، یہ تو نہ کہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ان معنوں سے نہیں مان. مجھے یہ میں آپ سے پوچھنا، جی میری آواز آ رہی ہے عامر بھائی؟ رک رک کر آ رہی ہے، تھوڑی صحیح کر لیں. معذرت، وہ نیٹ خراب ہے. اچھا بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اور وہ انشاءاللہ مسلم بھی میں اسے کر لوں گا، بٹ مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر اس کی اور زیادہ اصلاح کرنا چاہوں تو وہ میں کیسے کروں؟ اس کو کیسے اس طرح ان کے بارے میں گائیڈ کروں؟ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، وہاں سے شروع کرنا چاہیے. یہ اکثر ہماری یہی مصیبت ہوتی ہے، ہم دوسروں کی اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہماری اصلاح ہو چکی ہے. تو انسان کو اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. مہربانی کرنا طارق چوہان صاحب، وہ ایک بچہ آیا ہے، وہ گل کرن دے، بس اور آدمی ہو کے یار. بچہ تیرے تو زیادہ بچہ ہے، وہ میں وہ تو بڑا ہے. وہی تو کہہ رہے ہیں، وہ جڑا بچہ ہے انہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بھائی اللہ. سے سب سے پہلے تو ادب سے سلام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح تب بھی ہوگا جب وہ مسلمان ہوگے. آگے عمر بھائی آپ کو بتاتے ہیں. سوری، وہ میں نے نا ہاتھ لگایا تو میرا وہ نکالنا کسی اور کو تھا، اسٹیریل صاحب کے لیے، میں نے خود کو شاید ڈسکنیکٹ کر دیا. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دوستانو، عزیزانو، پیاریانو، برخردارانو، بزرگان. جی وعلیکم السلام. جی اچھا، میں ہن دو سوال تہاڈے کو امن نذیر صاحب پوچھنے نے. جی جی اے جڑا تسی ہنے اپنے تئیں ایک دعویٰ پیش کیتا ہے کہ کسے بھی قسم دا، کسے بھی لحاظ نال، کسے بھی مفہوم وچ اگر کوئی نبی آندا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، اور جڑے منن والے نے وہ بھی کافر نے، وہ بھی مطلب اسے کیٹاگری چاہتے ہیں. تے اے دلیل سارے واسطے کہ صرف جماعت احمدی ہے، جے بھاویں او دا کوئی بھی گروپ ہے او دے واسطے؟ اسٹیریل صاحب ذرا اردو میں بات کریں، وہ ان کو جی اردو میں وہ کہہ اردو رہے میں ہیں، بات کریں، اسکانی صاحب بھی سنیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جو عامر نذیر صاحب نے اپنے تئیں ایک فتویٰ جاری کیا ہے، جس کی میرا خیال ہے اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ نذیر صاحب ہی اس طرح کی نظیر لا سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی مدعی نبوت جو ہے امت میں آ ہی نہیں سکتا، اگر آ جائے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور ماننے والے بھی کافر ہیں. اب جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا وہ ایک نبی ہے، اس پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اسٹیریل صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام جس کو وہ ریپرزینٹ کرے نا، اس کی یہ شرط ہے. اور بھائی جان انہوں نے منہ بھی زبان ہے، وہ تھتھے نے، انہوں نے تو بولن دو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی ہے، کوشش کریں، ہمت کوشش کر کے وہی بات کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ کوئی تھوڑا بہت سچ بھی نکل جائے منہ سے. میں نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی لوگوں نے آج تک نبوت کے دعوے کیے ہیں ان سب کو جھوٹا قرار دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ان معنوں میں مانے. سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ کرے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو اور ان کی تمام تعلیمات کو جھوٹا قرار دے کر ان سے برات کا اعلان کرے. یہ ہے اس کا اسلام، یہ میں نے کہا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جن کی نبی پاک نے خبر دی ہے، جن کی نبی پاک نے خبر دی ہے، نبی پاک کی خبر کی وجہ سے تو ہمارے دین کی جو ماخذ ہے دین اسلام کا، وہ تو ہے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ذات. جو بھی انہوں نے خبر دی ہے ہم اس پر منوان نہیں مان لائے، لیکن اس خبر کو بدلنا کیونکہ چنانچہ کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، ان کی جگہ کسی اور نے آنا ہے، ان کے کسی مسیح نے آنا ہے،
ये तो एक नया ही दीन है ना। वो तो फिर वो तो बहस एक नई सिमत में चल पड़ेगी ना कि एक फौजशुदा शख्स जो है, खा वो नबी है, वली है, फौजशुदा तो आप ऐसे कह रहे हैं ना, दोबारा आ फौजशुदा तो, सकते। तारक साहब फौजशुदा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे फौजशुदा मुसलमा है मुस्लिम उम्मत के नजदीक। कुरान शरीफ मुसलमा है क्या? भी हाँ नहीं। जी, कुरान शरीफ जो अगर कहता होता तो मुस्लिम उम्मत 14 सदियों में ईसा अलैहिस्सलाम को फौजशुदा ही तस्लीम कर रही होती ना। नहीं, अगर सारे नहीं कर रहे तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ये तो आप नहीं कितने कह लोग सकते। कर रहे हैं? कितने हाँ लोग जी? कर रहे हैं? कितने कोई लोग हैं दुनिया क्या में? करना जी, एक बंदा भी अगर वो इस्लाम में एक बंदा भी कह रहा है कि एक बंदा बात तो भाईजान सुन ले, इसके बाद अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है ना आपने फौत हो जाना ना मैंने। बात ये है कि जब एक भी बंदा देखे ना, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अपनी जात में एक थे ना, उन्होंने अपना पैगाम शुरू किया अल्लाह के फरमान के मुताबिक। एक तो फिर बढ़ते बढ़ते आज 52-53 मुल्क में या 54 मुल्क में उम्मत मुस्लिमा है। तो बात तो एक से शुरू, अगर एक बंदा भी उन्होंने मिर्जा साहब के इस दावे से पहले कह दिया है, तो ये इस बात की दलील है कि सारी उम्मत आप के साथ मुतफिक नहीं है। ठीक है, ये आपका दावा बातिल है। एक बंदा तो इस उम्मत में नबूवत का दावा भी कर चुका, एक बंदा तो इस उम्मत में खुद को खुदा भी कह चुका, एक बंदा तो इस उम्मत में खुद को पता नहीं क्या क्या दावे इस उम्मत में, वो सर सैयद अहमद खान था मिर्जा साहब से पहले, वो यही सारी तालीमात बैन ही यही तालीमात पेश करके सवाए दावा मसीह के बाकी सारे उसके मौजज़ात के इनकार और ईसा अलैहिस्सलाम की वफात, ये सारी बातें तो एक बंदा तो उनके मिर्जा साहब के साथ ही खड़ा था उनके दौर से कुछ ही पहले। उस बंदे की क्या हैसियत है? इस तरह के गुमराह, क्या हम कहते हैं कि इस उम्मत में गुमराह पैदा ही क्यों नहीं हुआ? मतलब इसका मतलब है कि सर सैयद अहमद खान साहब हों या मिर्जा साहब हों, वो तो गुमराह हैं, तो आप जो है अकेले जो है राह रास्त पर। मैं अकेला हूं और वो उसके साथ सारी उम्मत है सर सैयद अहमद खान के साथ। सर सैयद का उम्मत पर या कौम पर एहसान तो है कि उससे भी आप इनकारी हैं। कोशिश करें मुंह से सच निकल जाए। तारक साहब, मैंने सवाल किया है, मैं अकेला हूं और सर सैयद अहमद खान के साथ सारी उम्मत है उसके नजरियात के साथ। उसके साथ एक बहुत बड़ी कौम खड़ी है। कहाँ है वो कौम? कहाँ है? हाँ, हूँ मैं उसे जाके मैंने कई लोगों के साथ आज से 30-35 साल पहले जिन्होंने पुराने बीए जिन्होंने किया होता था, वो अपने साथ बड़े फख्र से लिखते थे बीए अलीग, यानी अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ इसने। अच्छा, इंज ना जड़ा है वो जो बंदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ हो जिसने, वो सर सैयद के नजरियात का हामिल होता है, लेकिन वो सर सैयद की खिदमात का तो जो है वो कायल होता है कि वो हो गया आपको। तारक साहब, जिन्होंने आपके कादियान स्कूल से पढ़ा, अल्लामा इकबाल और उनके जो बेटे थे दूसरे, उन्होंने जो दाखिल कराई, ये जो जज बना बाद में, ये सारे मिर्जा साहब के नजरियात से हम आहंग थे। तो एडी बड़ी कड़ी गल है, हम आहंग तक सारे होंगे ही नहीं। मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अपने लड़कों को वहां पर दाखिल करवा दिया था आपके स्कूल में, क्या वो मिर्जा साहब का साजिश नहीं अब ये देखें ना, आप वो बात कर रहे हैं जो जिसके नीचे आप खुद आ रहे हैं। बटालवी साहब सारी उम्र बटाला के रेलवे स्टेशन पे खड़े होके ये फरमाते रहे कि कादियान जाओगे गुमराह हो जाओगे, कादियान जाओगे गुमराह हो जाओगे। अपने बच्चे वहाँ गुमराह करने के लिए भेज दिए। वहाँ पे हदायत थी। इसका जवाब ले लेना, अब इसका जवाब को आपसे हमेशा हम लेते हैं। आप सिर्फ इतनी जल्दी ना किया करें। आप ये समझते हैं कि मैं पत्थर मार के भाग जाऊंगा? नहीं, मैं आज तक नहीं भागा। आप जब फरमाते हैं ना तो मैं खड़ा हो जाना। ऐसे जाफी हैं कि अगर आप तेल लगा के भी आएंगे इंशाल्लाह आपको निकलने नहीं देंगे। ठीक है। मोहम्मद हुसैन बटालवी ने आपके यकूब इरफानी से अहद लिया था कि मैं उनको जोग्राफिये की, मंतक की, फलसफे की तालीम दूंगा। मिर्जा साहब की तालीमात, मिर्जायत की तालीम वहां पर नहीं होती स्कूल में, और ना देंगे आपके बच्चों को। ठीक, लेकिन वो मिर्जाई नहीं जो बादहद ना हो। अच्छा, उसने बादहदी की यकूब इरफानी ने,
اور مرزا صاحب उनके बेटों को गुमराह किया और उनको दीन की बातें वो बताता रहा. ये जो मिर्जायत है, जिसका नाम मिर्जायत, इसकी बातें बताता रहा, गुमराह किया उनके लड़कों को. ये बात ठीक है, लेकिन शेख बटालवी ने या अल्लामा इकबाल ने अपने लड़कों को वहां पर उस स्कूल में, जो स्कूल आपने कादियन में बनाया था ना, जिसका प्रिंसिपल शेख अब्दुर्रहमान मिस्री था, उसमें जगराफिया पढ़ाने का, मंतक पढ़ाने का, फलसफा पढ़ाने का, रियाजी पढ़ाने का, ये फारसी और अरबी ज़ुबान पढ़ाने का, ये मज़ामीन पढ़ाए जाते थे. अगर वहाँ चोरी छुपे आप बाहर दरवाजे पे बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर जगराफिया पढ़ाया जाता है, मंतक पढ़ाई जाती, अंदर आप मिर्जायत की तालीम देते, तो आपसे बड़ा धोखेबाज कौन है? बिल्कुल सही. अच्छी हो गए ना धोखेबाज. हुण ਇਹਦਾ जवाब तुसी तसल्ली ਨਾਲ ले लोगे. बिस्मिल्लाह. मेरी गुजारिश ये है कि जब आपके सरबराह मुमलकत ने वो ऑर्डिनेंस नाफिज किया 1984 वाला, तो उसमें उसने ये फरमान जारी किया कि अब कोई जमात अहमदिया जो है वो अपनी किसी किस्म की तबलीगी सरगर्मियाँ जो है वो जारी नहीं रख सकेगी पाकिस्तान में. ठीक हो गया. अब आपको ये पता है कि जब हम कहीं सफ़र करते हैं, बस में जाते हैं, तो साथ बैठे लोगों से कोई ना कोई अलग सलग हो जाती है. कहाँ से आए हो? जी मैं रबुआ से आया हूँ. उत्थे तो भी सारे काफिर होंगे ने. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ जब मैंने अपनी वजाहत करनी है, आप अपनी फहम से, अपनी अकल से, अपनी समझ से ये बताएं कि वो जो तबलीग पर उसने पाबंदी लगाई थी सदर मुमलकत ने, वो तो वही ख़त्म होगी. जब मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने तो बताना है. आप भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, तबलीग तो जारी है, कहाँ बंद हुई. और इसी तरह अगर शेख बटालवी साहब के लड़कों ने कुछ पूछा है, मैं खुद अपने तौर पर तो नहीं बताऊंगा. जब शेख बटालवी साहब के लड़के मुझे कहेंगे भी आपके तो अकायद ही मुफसद हैं, तो मैं तो उनको कहूँगा नहीं भी ये मैं कोई काफराना अकायद नहीं रखता या मैं मुफसद नहीं हूँ, बल्कि हम खुद को सही मुसलमान समझते हैं. तो ये हर एक का हक है. आपको हक है आप खुद को सही अकीदा मुसलमान समझे, और ये मेरा हक, मुझसे कोई नहीं छीन सकता. बात तो सिर्फ इतनी है. अगर शेख साहब के बेटों ने पूछा तो उनको बताना कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई जुर्म है. ठीक है. ये तो सारी बात आपकी मफरूजे पर मबनी है ना. अगर उन्होंने पूछा है, हकायक पे मबनी है सर जी. हकायक दिखाएं वो कहाँ पर हकायक लिखे हुए हैं कि वो अब्दुल बासित ने या अब्दुल समाद ने पूछा था आपसे कि मिर्जा साहब का दावा किस बात का है और कहाँ पर इसकी दलील है. दिखाएं. आप ये दिखा दें कि वहाँ उन्होंने किस बात पर उनको जो है वो अपने अकायद बताते रहे, कहाँ पर बताते रहे. मैं तो शेख बटालवी का कॉल दिखाऊंगा ना. उन्होंने कहा कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐद किया था और बदअहदी ना करे तो मिर्जाई नहीं. आप क्या दिखाएंगे? नहीं, उनके बेटों ने भी ये कहा कि हमें जानबूझकर ये तबलीग करते रहे. भाई बेटों से बाप ने पूछ कर ये बयान अपने अखबार में छपा ना. अब मैं उनकी इतने की करा. सबर करो, की करना है. उस दिन आपने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साबरी जो चाचड़ा शरीफ वाले हैं, उनके बारे में यही इरशाद फरमाया कि उनका बयान लेकर शेख बटालवी साहब ने छाप दिया, और उन्होंने खुद अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया मिर्जा साहब के खिलाफ. कोई शेर भी नहीं लिखा, एक मिसरा नहीं लिखा. उस मुलाकात के बाद भी अगर हुई भी है तो यहाँ भी आप ये फरमा रहे हैं उनके बेटों ने कुछ नहीं कहा, वो उन्होंने अपने उनके बाप ने लिख दिया. अब वो 12-13 साल के बेटे को लिखना चाहिए था. रसाला शाह सुन्ना में अब्दुल बासित को और अब्दुल वो क्या नाम था उसका, उसको लिखना चाहिए था. जाहिर हो गई है. अब अखबार में 12-13 साल के बच्चे का कौन सा बयान छपता है अखबार में? कौन से अखबार में लेते हैं बयान उसका? क्यों नहीं लेंदे? तुसी मेरी बात सुने. आप उनका बाप जो कह रहा है कि मेरे बेटों को, तारक साहब मरना है, आखिर कल जाना है कब्र में, बात खरी करनी चाहिए. 12-13 साल के बच्चों का बाप कह रहा है कि मैंने बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे, मेरे साथ यकूब इरफानी ने ये अहद किया था, लेकिन उसने बदअहदी की है. आप कहते हैं उसकी बात को छोड़ो, उसके 12-13 साल के बच्चों को पूछो. अच्छा चलो, 12-13 साल तो बाद वो जिंदा रहे ना बच्चे?
किसे दौर थे अल्लामा आमर नज़ीर साहब उन्होंने भाई, बयान हाँ दिया। उन्होंने अपने बाप के बयान को जुटलाया हो और उन्होंने कहा कि हम आकल बालग थे, हम हाँ खुद जी। सीखना चाहते थे, हमने वहां पर ये बात पूछी तो हमें उन्होंने बताया हमारे वालिद ने गलत कहा है। आप वो पेश कर दें, मैं आपसे माफी मांगू सबके सामने। बस आमर नज़ीर साहब ये थे पंजाबी जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम स्टे साहब, स्टे भाई, इसमें देखें एक सवाल ये पैदा होता है, ये अमर नज़ीर साहब जो भी कह रहे हैं, किसी भी स्कूल कॉलेज में जो है वो पीरियड लगते हैं, मशर्तिया लोम का पीरियड अलहदा होता है, जोग्राफिया का पीरियड अलहदा होता है, दीनियात का अलहदा होता है। अब अगर वो सिर्फ जोग्राफिया या मशर्तिया लोम ही पढ़ रहे थे तो वो दीनियात या इस्लामियात के पीरियड में क्यों जाते थे? सवाल उठता है ना। या बिल्कुल। अब ये सारी बातें जितनी ये बता दें, ये सारी बातें जितनी भी आप कर रहे हैं ना, आपके पास ना कोई दलील है ना कोई सबूत है, सिर्फ मफरूज़े पर कर रहे हैं। उस ज़माने में ये बच्चे वहीं पर रहते थे, हॉस्टल बना हुआ था, ये बच्चे रोज़ को बटाला नहीं आते थे, ये वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे। और उन्होंने जो आप कह रहे हैं ना ये पीरियड का सिस्टम, ये तो बाद में चले हैं ना पीरियड का सिस्टम। हाँ, उस ज़माने में पीरियड नहीं होते थे, ऐसे ही क्लासें होती थी। अच्छा अच्छा आमर साहब, मुझे ये बताएंगे अगर पीरियड का सिस्टम नहीं था होता तो वो जो जोग्राफिया पढ़ाया जाता था उसके अंदर ही वो इस्लाम के अंदर भी बीच बीच में ये भी बता दिया करते थे। आप मेरी अभी अगर हम अभी जोग्राफिया की बात कर रहे हो तो दीन की बात बीच में कैसे आ सकती है? यही मैं अर्ज करना चाहता हाँ, हूँ। ये बता दें जरा। वो बच्चे क्योंकि वहां पर हॉस्टल में रहते थे, जो स्कूल से अलग टाइम होता था, वहां पर उनको वो मिसगाइड करता रहा यकूब इरफान। अच्छा, ये स्कूल से बाहर की बात है, हॉस्टल टाइम में, हाँ, जहाँ वो हॉस्टल में होता। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अरे गल सिर्फ इन्नी है, हुन मेरा अंदाजा है। स्कूल तो बाहर आ गए ना एसटीए साहब, जी जी। स्कूल से बाहर आ गए हैं। नहीं नहीं, मैं इन्होंने असली जगह ते ले जाना चाहना। अहमद की जान साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं उस वक्त, क्योंकि गैब का इल्म मेरे पास भी नहीं है और माजी की बातें मेरा बताने का कोई दावा भी नहीं है। मैं अपने तजर्बे से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे जितने भी स्कूल, इंक्लूडेड जो रबुआ में भी स्कूल थे, तलीमुल इस्लाम हाई स्कूल या तलीमुल इस्लाम कॉलेज, इन सब के अहातों में एक अच्छी बड़ी मस्जिद बनी होती थी और रब्बा के स्कूल और कॉलेजेस में हॉस्टल भी थे। हाँ, ये होता है कि वहाँ पे फजर और जोहर के बाद दरस होते हैं। अगर इनमें कोई बच्चा बैठ जाए तो उसको उठाया नहीं जा सकता। अगर मौलाना के बच्चे वहाँ जाके बैठ के कोई सीखते रहे हैं या समझते रहे हैं, वो एक अलग बात है। हमारे उलमा ने अगर उनसे वादा किया होगा तो उनके बच्चों की हद तक तो किया होगा, हम इनको नहीं बताएंगे, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत तो उन्होंने करनी है। अगर वो उनके मोहतरम, हम तो इसको उनकी इज्तिहादी गलती मानते हैं कि शाम को दूध पिलाना और आप लोगों पर एतबार करना, ये उनकी बहुत बड़ी इज्तिहादी गलती थी। उन्होंने गलती की, उसका खमियाजा भुगता, इतनी सी बात है। वो बच्चों को वहां पर भेजना ही नहीं अच्छा चाहिए। आमर साहब, वो जो इतने बड़े शायर गुजरे हैं जो खुद दुनिया को कहते थे कि अगर किसी ने दीन सीखना तो वो जाके कादियान से में सीखे, किसने कहा ये आपके जो शायर थे? कि इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना जो है वो कादियान में देखा जा सकता है। हाँ जी, हाँ, फिर हो सकता है इससे वो जरा आए हों उसमें कि चलो यार वहाँ पे हम अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं तो वो मशर्तिया लोम ही सीख लेंगे, कोई जोग्राफिया ही जो वो तालीम है वो ही हासिल कर लेंगे। तो आप ये बताएं कि जिस जगह का माहौल ही ऐसा हो, यानी कि दीनी माहौल हो, उसमें इंसान इन चीज़ों से बच सकता है? हाँ, मैं जवाब अर्ज करने पहले तो इस अच्छा आमिर नज़ीर साहब, मेरा एक बात मैंने करनी है, आप बाद में जवाब इनका दें। देखें, ये जो स्टे रियल साहब ने बात की है ना, ये इनकी बात दुरुस्त नहीं है। आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, कोई मसलन ये जो केस है, हम जो असल जिससे बात जुड़ी वो ये था कि एक मुसलमान लड़का है, उससे एक अहमदी लड़की शादी करना चाहती है और उसकी ये डिमांड है कि वो इस्लाम कबूल करे। यानी ज़ाहिर है कि
अब वो ये तो नहीं कह सकते तुम कलमा पढ़ लो, क्योंकि कलमा तो वो पहले ही पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो क्या पता चलेगा कि वो वाकई मुसलमान होगी, यानी अहमदियत को उसने छोड़ दिया है। तो जाहिर है कि उसके लिए यही शर्त होगी ना कि वो मिर्ज़ा साहब का इनकार करे, उनको झूठा माने। इसके अलावा कैसे उसको हम जान सकते हैं कि वाकई उसने अहमदियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो आमिर नज़ीर साहब, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस लिहाज से इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, मैंने ना सिर्फ एक बात का जवाब देना है। वो कहते हैं कि जो आपके शायर मशरक थे, उन्होंने अपने बेटों को क्यों भेज दिया कादियान? वो तो पूरी दुनिया के, वो तो अपने पूरे मुस्लिम उम्मत के कौम के मेहमान थे। तो उनसे या शेख बटालवी से, दोनों से ही ये गलती क्यों हुई कि उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया? या वो दूसरा ये कहते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि जिसने इस्लाम का ठेठ नमूना देखना हो वो कादियान में जाकर देख ले? भाई अगर यही सवाल आपसे कोई किया करे, वो तो लामा इकबाल तो एक शायर थे, शायर मशरक थे। यहाँ पर तो लोगों ने नबूवत के दावे किए हुए हैं कादियान में, और वो कहा करते थे हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्ले। ये आयत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतल्लक है, वो इसके मिस्दाक हैं। जब वो आसमान से नाजिल होंगे तो इस्लाम जमी आफाक व अख्तार में उनके हाथों फैल जाएगा। कहा करते थे कि नहीं, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दलीलें देते थे कि नहीं? इसका जवाब आपकी तरफ से ये होगा कि भाई मिर्ज़ा साहब ये कहा करते थे, लेकिन बाद में मिर्ज़ा साहब ने अपना अकीदा चेंज कर लिया। यही जवाब मेरा है कि लामा इकबाल कहा करते थे कि जिसने इस्लाम का ठेठ नमूना देखना हो कादियान जाके देख आए, क्योंकि लामा इकबाल की उम्र तो उस वक्त 14 साल थी जब वो अपने वालिद के साथ गए थे। 77 में वो पैदा हुए, 91 में या 92 में बल्कि उनके वालिद उनको साथ लेकर गए, शेख नूर मोहम्मद। तो वो वहां पर मिर्ज़ा साहब की उन्होंने बैत उनके वालिद ने की थी। लेकिन जब वो बड़े हुए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, उन्होंने कहा मिर्जाइयों से बिहाई बेहतर है। ये मिर्जाई जो है ना, इनसे बिहाई बेहतर हैं, जो कम से कम अपना अलग उन्होंने नाम रखा हुआ है। ये तो इस्लाम के अंदर घुसकर इस्लाम के किले को गिराना चाहते हैं और इस्लाम की इमारत को मुनहदम करना चाहते हैं। आस्तीन के सांप करार दिया आपको। तो अगर उन्होंने पहल गलतफहमी का शिकार हो के मिर्जा साहब जिस तरह आपके बकौल गलतफहमी का शिकार रहे और हयात मसीह का, अच्छा आमिर साहब, वो भाइयों से उनका नाम क्या था? क्या किन का नाम ले रहे हैं आप? उनका नाम क्या था? बिहाई बिहाउल्लाह के फॉलोअर्स को कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो हम अहमद अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसमें हमारा नाम नहीं आता? समझ नहीं आई आपकी बात। हम अपने आप को अहमदी कहते हैं ना? हाँ ठीक है ना। तो आप कहते हैं जी वो अच्छे थे क्योंकि उन्होंने अपना नाम रखा। हाँ, ये वो बात है कि जो बिहाई है ना, वो अपने आप को इस्लाम से वाबस्ता नहीं करते, वो इस्लाम से अलग अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं। आप लोग अपने आप को इस्लाम से जोड़ कर रखना चाहते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों का ही एक फिरका है। ये मैं बात कर रहा हूँ। इसका जवाब एक ये भी है कि शुरू में जब मिर्ज़ा साहब ने दावा किया था, उस वक़्त मिर्ज़ा साहब अपने मुरीदों को मुसलमानों के मदरसों में भेजते थे, मौलवी फादिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए। तो उस वक़्त तो यही था, ये इस तरह का माहौल था, वो जाते थे। ये इख्तिलाफ़ात तो फिर बहुत बाद में हुए। खुद गुलशाह के पास नहीं पढ़ते रहे? फजलुल्लाह कौन था जी, फजलुल्लाह कौन था जिसके पास पढ़ते रहे? नहीं वो तो कह सकते हैं ना जी, वो दावे के पहले की बात है। दावे से पहले, हाँ, मैं तो बाद में दावे भी के बाद की बात बच्चे पढ़ते रहे मुसलमानों के मदरसे में। जी। बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने किस स्कूल में पढ़ा है? शरीफ अहमद ने किस स्कूल में पढ़ा है? नहीं आमिर नज़ीर साहब, फिर आप ये बात माने कि जब तक हजरत मिर्ज़ा साहब ने वो इमामदी या मसीह मौद होने का दावा नहीं किया, उससे पहले वो मुसलमान थे। उनके बावजदाद साहब मुसलमान थे। उनकी मस्जिद थी जिसमें 500 हाफिज हर वक्त मौजूद रहते थे, यानी कि उससे पहले वो मुसलमान थे। 500 हाफिज वाली रवायत, यानी कि वो इस्लाम की प्रैक्टिस करते रहे हैं, और जब उन्होंने ये दावा किया उसके बाद वो काफिर हुए हैं। कुंबा जो वो बिल्कुल खबीस था, दीन से दूर था। उनके वालिद साहब जो थे उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन बहरहाल वो घराना मुसलमानों का ही शुमार होता था। नहीं था तो मुसलमानों का ही, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग नहीं थे। बल्कि अब जो मिर्ज़ा साहब के रिश्तेदार थे, कज़न वगैरह,
ان کے خلاف تو مرزا صاحب بقول ان کے اپنے یہ تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بدزبانی کرتے تھے، اسلام کے متعلق بدزبانی کرتے تھے. تو وہ محمدی بیگم کا جو واقعہ ہوا وہ بھی اس کی وجہ بھی مرزا صاحب یہی بتاتے ہیں. تو ان کا خاندان تو وہ ایسے ہی تھا، اور ان کے والد اور ان کے بھائی اور سارے وہ دنیا دار تھے، وہ دنیا کی طرف مرزا صاحب کو کھینچتے تھے، مرزا صاحب کا دل مسجد میں لگتا تھا. تو یہ مرزا صاحب نے خود بیان کی ہوئی ہیں باتیں. ہاں، بے دین اور بے عمل ان کا جی قبیلہ، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہی قبیلہ تو وہ مسلمان. لیکن اس میں سے آج بھی طارق صاحب، آج بھی کئی لوگ جیسے محمدی بیگم کے اس خاندان کو بڑا پسند کرتے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے تھے. عامر بھائی میں نے ٹھیک ہے، ان میں ہو سکتے ہیں عامر نذیر صاحب بھی ہوں. یہ بھی ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں انہی میں سے ہوں، محمدی بیگم کے خاندان سے ہوں میں، جو یہ حرکتیں کرتے پہلے رہے. کی بات ہے، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے نا یہ بات کی تھی کہ مرزائیوں کی کوئی لڑکیاں ہیں، یہ مطلب لڑکیاں دیتے ہیں وغیرہ، اور چلو ویزا بھی کہہ دیا تھا. تو ان کو غصہ لگتا تھا جب میں یہ بات کرتا تھا کہ پسند وہ کرتی دینا ہے. اور ہے، خود کسی کا شادی کرنا اور بات ہے، یہ الگ الگ باتیں. جی جی. تو ویسے میں نے اپنا واقعہ بھی شیئر کیا تھا، یہ میرے ابو کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا سارا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، ابھی میں چھوٹا ہی تھا، لیکن میں نے تو پروف کے ساتھ، اور وہ غصہ کر گئے تھے. تو آج میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ نے بتایا. باقی ہاں، وہ حقیقت تو کیا کہہ ہے رہے آپ کہ ہم بہتر ہی جانتے ہیں. شادی یہ کرا دیں. جڑے یہ واقعات ہیں نا، جو یہ واقعات آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ میں جنرلی ہوتے رہتے ہیں. میرے والد صاحب کو بھی ان کا جو استاد تھا زرگری کے کام میں، اس نے کہا تھا جماعت چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں اور گھر بھی دیتا ہوں. اب یہ کیا بات آپ دلیل لے آتے ہیں؟ اس طرح کی جو مرضی کوئی بنا کے پیش کر دے. نہیں، میں جھوٹے تے لعنت بھیجنا ساڈے والوں نے خود دسیا، وہ اسی وجہ تو انہاں تو علیحدہ ہوئے. یہ مطلب ایک کسی نو بدنام کرنے واسطے یہ چیزاں دہرانیاں اور بازاری باتیں کرنا. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، مطلب یہ نہیں کہ صرف اب آپ نے بات کی ہے، مرزا صاحب کے لوگ کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگ میری بات بھی سنیں. کرتے ہیں. دیکھیں نا، ادھر آئے آپ ڈاکومنٹ لینے کے لیے، کوئی بھی یہ جرمنی میں ابھی بھی بہت ہو رہا ہے. ذرا سا لو نا، دیکھو ربوا تھوڑے غریب احمدی ٹرے پھرتے ہیں یا پاکستان ساڈے کو انج لڑکیاں پہ چک چک کیوں عامر بھائی، جرمنی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ بتا سکتے ہیں؟ جرمنی میں تو مسلمان لڑکے لڑکیاں جو ہیں یہ آمدی ہو غیر آمدی ہو کوئی تمیز نہیں ہے، وہ جس کا جی چاہتا ہے جہاں وہ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. اس میں ایسی کیا آپ نئی بات لا رہے ہیں؟ یہ باتیں جو آپ میرے لیے تو نئی بات تھی، میں نے ہمارے لیے نئی بات پتہ نہیں. اب آپ کو کتنا عرصہ یہ یورپ میں ہوا ہے، انگلینڈ میں جا کے دیکھو، مسلمان لڑکیاں اور انگریز لڑکے. مسلمان دیکھیں، میں نے تو جتنی بھی دیکھی ہے، جو ہے تیرا منہ جڑا بند نہیں ہوندا، تو گل دا جواب نہیں لیندا. ریئل صاحب، میں نے کون سا کوئی گالی دی ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے تو حقیقت بیان کی. سرداراں نال جڑیاں مسلمان لڑکیاں وہ احمدی ہون غیر احمدی ہون ٹریاں نہیں پھردیاں. ان باکس میں نے کتنے مطلب گل کرو، تہاڈے کو چوہان صاحب ہے نے، کرو گل. کی ہو گیا رومانٹک کیوں بندے نو یار زچ کر دے ہو کہ اگلا بندہ جڑا غصے چ آ کے کھال ہی کھڑتا ہے. اسٹیریل صاحب ناراض ہو کے چلے لگتا ہے. ہاں جی ہاں جی، ناراض ہو گئے. السلام علیکم. ناراض نہیں ہے، وہ ہے پوسٹر تک ناراض ہوئے نے، پوسٹر تک. ایویں نہ سجے کھبے ہوں ہاتھ مارو، تسی کردے ہو بندیاں نو زچ کردے ہو تے اگلے بندے جڑے نے. عامر بھائی لایا تسی آپ پہ، میرے آکھے جاندے سے پہ. انہاں جے پڑھیا نا تے نام ہی لیا. اوے میری گل سنو، جھوٹیاں دے کام نہ کرو، دوئے مسلمانوں جڑے پوسٹر دا تو نام لیا. السلام علیکم. سنگ تے چھری رکھ لیے، انہاں پڑھیا ہے، پیش کی قیمت کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام شاہنشاہ. وعلیکم السلام. میرے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے رہا ادھر. یہ 2 دفعہ دیا ہے. السلام علیکم. بھجن میں نے دے دیا، بات ختم ہو گئی. وعلیکم السلام. 2 دفعہ میں نے بھی دیا جی. حضرت نون بھی آئے ہیں، ان کے بھی سارے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے. تو میں نے آپ لوگوں سے ایک بڑی خاص بات کرنی تھی. جی ویلکم. کہ تھینک یو بھجن. 2 دن قبل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے
और बड़ा शदीद इतनी गर्मा गर्मी होगी कि जिसकी इंतहा नहीं है। मोहतरम पीर साहब भी इधर मौजूद है और मैं बड़ा खुश हूँ कि सारे बुजुर्ग हैं इधर। तलत मलक साहब एक लाइव पे आए और गुफ्तगू हो रही थी, उसमें हमने एक वीडियो चलाई जो कि इनके खलीफा साहब हैं जो हमारी नज़र में बहुत बड़े गुस्ताख हैं, मिर्ज़ा मसरूर साहब। तो मिर्ज़ा मसरूर साहब की जब हमने वीडियो चलाई जिसमें उन्होंने हज़रत ईसा खुदावंद यीशु मसीह पे बहतान लगाया कि शराब के नशे में उन्होंने कह दिया था मैंने वापस आना है, आना उना उन्होंने कोई नहीं है। ये बात की मसीही होने के नाते से, उनके पैरोकार होने के नाते से हमारे जज्बात भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ तक हमारे मुसलमान भाइयों के भी जज्बात उसी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने मिर्ज़ा मसरूर साहब पे लानत की कि उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं दौरान गुफ्तगू। जैसे मैंने लानत की उस पर पहले मैंने मलक साहब को पूछा कि मलक साहब आप बताएं ये कितना गैर यानी कि नामुनासिब किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के अल्फाज इन्होंने बोले हैं, तो इनको आप रद्द करते हैं कि या नहीं करते हैं? बजाय रद्द करने के उन्होंने तवीलें बांधनी शुरू कर दी और उसकी सपोर्ट करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जी हम तो आपके खलीफा भले हो, मिर्ज़ा साहब जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब हैं उनको हम कुछ नहीं कहते, आपके वो मुक़द्दस हैं जैसे भी है भले, हम उनको बिल्कुल नहीं मानते, उनकी नबूवत का रद्द करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा मसरूर साहब पे हम लानत करते हैं, हमारे लिए तो वो आम इंसान है जैसे आप हैं। तो जैसे हमने लानत की है, मलक साहब ने इतनी नंगी गालियां दी हैं खुदावंद यीशु मसीह को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, फिर भी वो गालियां देते जा रहे हैं। सारे भाई गवाह हैं जो भी उधर बैठे हुए थे। और आपने रिकॉर्ड की है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, जिसकी लाइव है उसके पास रिकॉर्डिंग है। इतनी नंगी गालियां दी, इतनी गालियां दी कि मेरा सब्र का पैमाना जो था वो भी लबरेज हो गया। फिर भी मलक साहब को मैंने डायरेक्टली एक भी गाली नहीं दी है। जब उन्होंने हद कर दी, सारे भाइयों को बार बार उस रिकॉर्डिंग में बोल भी रहा हूँ कि भाइयों देख लो, हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को गाली नहीं दे रहे हैं, इस खंजीर को दे रहे हैं जो कि मसरूर अहमद है जिसने हमारे मुक़द्दस की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है। लेकिन ये डायरेक्टली हमारे खुदावंद यीशु मसीह को गालियाँ दे रहे हैं। तो फिर जब मेरा पैमाना सब्र का लबरेज हो गया तो फिर मैंने भी चंद सख्त अल्फाज मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के लिए बोलने पे मैं मजबूर हो गया जब वो चुप ही नहीं कर रहे थे। कहने का मकसद है, बहुत सारे जमात अहमदिया के भाई सुन रहे होंगे, हम नहीं ऐसी गुफ्तगू करना चाहते, हम ना करते हैं, लेकिन आपके अपने साहबान जो हैं उनकी ज़ुबानों को आप लगाम दीजिए। उनकी ज़ुबानें बहुत हद तक बढ़ चुकी है, तो इससे कोई हल नहीं होगा। सुबह शाम तो ऑलरेडी दुनिया आप पे तू कर रही है, अब और आपको क्या चाहिए? जी भाई। जी, ये जो बयान जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, इनके खलीफा साहब का बयान, इसने तो साफ बात कर दी है कि ये कादियानी गिरोह सारे का सारा ही मिर्ज़ा साहब से लेकर आज तक सारे ये मानते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह शराब पीते थे। कभी हमारे सामने खड़े होकर ये कह देते हैं कि नहीं वो असल में ना ईसाइयों दे यस्सु दी गल कीती है, ईसा जो कुरान में मज़कूर है उनकी बात नहीं की। कभी कोई बहाना, कभी कोई लेपा पोती, कभी कोई पंचर करते हैं। लेकिन अब जब कि इनके खलीफा ने ये बयान दिया है ना, तब से मैं समझता हूँ कि किसी के ज़हन में बहाम नहीं रह जाना चाहिए कि ये इनका अकीदा है और ये इनका पक्का ख्याल है, पक्का यकीन है कि मसीह अलैहिस्सलाम शराब पीते थे। और जिस तरह उन्होंने कहा जी शराब के नशे में उन्होंने माअज़ल्लाह ये बातें कर दी। इसके बाद भी अगर इनसे कोई उम्मीद रखे और कहे कि नहीं नहीं ये कोई मजहबी जमात है और ये हकीकी इस्लाम है, तो उसकी अपनी सोच ही है ना जी, वो जो मर्जी इनको मानता फिरे। काफ़ी हद तक मामला क्लियर हो चुका है। कई बातें ऐसी हैं जिन पर पंचर लग जाता है, कई बातें ऐसी होती हैं जिन पर पंचर लगाना
مرزائی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی جہاں پر نور القرآن وغیرہ میں مرزا صاحب نے فتح مسیح کے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں نا، وہاں پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اصل میں وہ عیسائیوں کے یسوع کو مخاطب کر کے مرزا صاحب نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو کہ کوئی بندہ عام انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور تصور بھی نہیں ان کا کر سکتا. لیکن اب جہاں پر دافع البلاغ کتاب ہے اس میں مرزا صاحب نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جب انسان حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جو یہ بات کہی ہے کہ ان کے دور میں ان سے بڑھ کر بھی راست باز لوگ تھے، یہ بھی ہم نے حسن ظن رکھ کے کہا ہے. بڑی یہ سمجھ لیں کہ ان کو گنجائش دے کر کہا ہے، ان کو آپ نے رعایت دے کر کہا ہے. ورنہ مرزا صاحب نے کوئی کرسچنوں کو جلانے کے لیے یا ان کا منہ چڑھانے کے لیے نہیں بات لکھی، مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو قرآن نے جو حسور نہیں کہا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو حسور کہا ہے، حسور کا معنی ہوتا ہے جو عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یحییٰ کو حسور کہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، اس کی وجہ وہ قصے ہیں جو انجیل وغیرہ میں مذکور ہیں کہ ایک کنجری آتی تھی فاحشہ عورت اور ان کے پاؤں میں سر کے بال رکھ کے ان کو چھوتی تھی. یہ باتیں انہوں نے کر کے مرزا صاحب نے کوئی الزامی جواب نہیں دیا، اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور اپنا نظریہ بیان کیا ہے کہ قرآن نے ان کا نام اس لیے حسور نہیں رکھا کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا کردار اس قابل نہیں تھا کہ قرآن ان کو حسور کے نام سے یاد کرتا. اس کے بعد کوئی بندہ کہے نہیں یہ کرسچنوں کو جلانے کے لیے، ان کا منہ چڑھانے کے لیے ان کے وہ یسوع کو مرزا صاحب نے ایڈریس کیا، نہیں، بلکہ ان کے یہ اپنے خیالات اور نظریات ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بیان کرتے آئے ہیں. ان کے پہلے مرزا صاحب سے لے کر بانی سلسلہ سے لے کر موجودہ خلیفہ تک جو کچھ یہ بولتے ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی نظریات ہیں. یہ جھوٹ نہ بولیں لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے صرف وہ کرسچنوں کے یسوع کو جواب دینے کے لیے یہ الفاظ مرزا صاحب نے کہے ہیں یا ہمارے خلیفہ نے کہے. صاف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہ خیالات ہیں. تو اللہ کے سچے نبی کے بارے میں جس بندے کے یا جس کمیونٹی کے یہ خیالات اور نظریات ہوں اور آپ ان سے برات کا اعلان نہ کریں تو کل قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں کیا دلیل ہوگی؟ جب ان سارے نبیوں کا خالق اور مالک آپ سے پوچھے گا کہ میرے نبیوں کی وہاں پر توہین ہوتی رہی، میرے رسولوں کو وہاں پر گالیاں دی جاتی رہی، تو تم نے کیا ریئیکٹ کیا؟ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ یا اللہ ہم مجبور تھے، ہم کمزور تھے، اگر ہم مرزائیت کو چھوڑ دیتے تو ہمارے رشتہ دار ہم سے خفا ہو جاتے، ہم کہاں جاتے، مرتا کیا نہ کرتا، ہم اس لیے اس کے ساتھ چمٹے رہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوگی آپ کے ہاتھ میں. آپ کو پھر وہاں پر ماننا ہی ہوگا وہ حکم جو آواز آئے گی نا القیا فی جہنم، اٹھا کے پھینکو ان کو جہنم میں. انہوں نے اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کا سودا بیچ ڈالا، وہاں پر آخرت کو بیچ دیا اپنی دنیا کی خاطر. میرا رشتہ دار زیادہ ہی لمبی ہو گئی، لمبی ہو گئی ہے، چلیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے. سیدھی گستاخیاں وہ کر رہے ہیں. نہیں وہ تو بہرحال جو مرزا مسعود صاحب نے بات کی وہ تو انتہائی غلط ہے، وہ تو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور جس طریقے سے انہوں نے تنزیہ انداز میں کی ہے وہ بہر تحقیر آمیز ہے. اور مرزا مسرور کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک ٹکے کی حیثیت نہیں مرزا مسرور کی، نہ وہ کوئی اس کا سرداوا ہے، نہ کوئی اس کی کوئی حیثیت، نہ کوئی بنیاد ہے. مرزا خاندان کی ایک گدی ہے بس. تو وہ کیوں اس طرح کی اس کو کیا حق ہے اس طرح کی بات کرنے کا؟ تو یہ انتہائی فضول سے بات تھی اس کی. اور اگر عیسائیوں نے مسیحیوں نے اس کے خلاف ریئیکٹ کیا تو ان کا بھی حق ہے، وہ صحیح کیا ہے انہوں نے ریئیکٹ. اور اگر جو یہ ملک وان ہے اگر وہ گالیاں نکال رہا ہے مسیحیوں کے آگے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی ان کو نکالیں گے. مطلب یہ اس کا تو پھر وہ ذمہ دار ہے نا جس نے یہ کام شروع کیا ہے. تو اگر انہوں نے گالیاں نکالی تو یہ بھی پھر حق بھی آنے تھے وہ نکالنے کے.
प्यारे भाई, मेरा बात करने का यही मकसद था। जमात अहमदिया के बहुत ज़्यादा भाई काबिल एहतराम हैं, बड़े सुलझे हुए हैं और गुफ्तगू करने का उनके साथ मज़ा आता है, लेकिन इस तरह से किसी को इंस्टिगेट मत किया जाए, उकसाया मत किया जाए कि जो आपके मुक़द्दसीन हैं उन तक जो है इस तरह से वो भी बदज़ुबान इस्तेमाल करें। तो ऐसे लोगों को जो है वो रद्द करना चाहिए। इनके पास जो जो जाके बैठेगा वो सारे के सारे ही गालीबाज होंगे, जी बिल्कुल, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो सका, 3 दफ़ा ऑलरेडी मेरी तलत मलक साहब के साथ बड़ी शदीद किस्म की बहस हो चुकी है और एंड वो यही करते हैं, तुम्हारे यस्सु की ये वो, हमारी माँ बहन बेटियों, यार इतनी ज़्यादा गालियाँ दी हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये तीसरी दफ़ा मुतवातर ये हो चुका है और उसके मुकाबले में हमने इतनी शराफत दिखाई है। 2 दफ़ा पहले इन्होंने इतनी गंदी गालियाँ दी, मैंने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कहा, नहीं गाली दी मैंने। अभी जब इस दफ़ा हुआ है तो बाकायदा मैं चाहता था कि ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा बने। मैं कह रहा हूँ प्यारे भाई, आप गालियाँ दे रहे हैं लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मिर्ज़ा मसरूर के ऊपर मैं लानत करता हूँ। ये लानती इंसान है, इसके सर में जूते मारने चाहिए, क्योंकि इसने अल्लाह एक तंज की है और हमारे मसीहा के बारे में इस तरह की बदजुबान इस्तेमाल की है। ये कोई शरीफुल नफ्स इंसान नहीं है जिसको आपने खुद साख्ता खलीफा बनाया हुआ है, और इस तरह की पोजीशन पे बैठ के भी बंदा गैर जुम्मेदाराना बयान दे दे, ये कहाँ की शराफत है। तो बस मलक साहब फिर हवा के घोड़े पे बैठ गए हैं, उन्होंने आओ ना ताओ बस सीधा ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इतनी गंदी गालियां दी हैं। अरे मुझे पहले देते जा रहे, वो पहले शुरू से ही इसी से करते हैं कि गालियां दे रहे, तुम लोग चूड़े हो, ये है वो है। अब हम क्या कहें, ऐसी तो जहनीत है इन लोगों की बन चुकी है। मैंने तो कोशिश की है कि कितना भी हो सके कि मैं इस तरह की गुफ्तगू से बाज रहूं। ये सारे भाई जानते हैं मैं शुरू में मेरा स्टैंस बड़ा सख्त था। मैंने जमात अहमदिया को लेके बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ था। फिर मैंने बहुत सारे प्यारे भाइयों को मैंने सुना देखा, तो मैंने कहा नहीं यार, चले हम जो है ना एक नरम गोशा रख के हम अच्छी गुफ्तगू की तरफ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट डिजर्व इट। जितनी दफ़ा भी कोशिश की है, अगले दिन कैसर भाई भी उधर बैठे हुए हैं और इन्हें जो गालीबाज उधर बिठाए हुए होते हैं, इतनी बदजुबानी मेरे साथ की, इतनी बदतमीजी की कि मैं क्या कहूँ। ये बस इनका एंड यही होता है, जब इनके पास कोई दलील नहीं है तो फिर ये गालियाँ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्या कहा जाए। बहरहाल हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये उनको हक नहीं था मलिक अवान साहब ने जो किया। तो उनको गाली देंगे तो फिर गाली सुनेंगे, तो फिर वो खुद ही वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। एग्जैक्टली जी, यही गालियां अगर मसरूर साहब को पड़ी होती ना, ये गालियां, तो यकीन माने सारे नहीं जो मर्दई सारे इकट्ठे होकर मलक साहब के पास हो जाने थे। ओ यार ये क्या हो गया मलक साहब, ये क्या हो गया, आपको पता नहीं इनकी अकल कहाँ गई है, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पीटते हैं, रोते हैं फिर जब इनके साथ थोड़ा सा भी हो जाए। लेकिन इनको शर्म नहीं आई एक नबी के साथ ऐसा करते हुए। वो कह रहे थे, तलत मलक साहब कह रहे थे, पिछले हफ्ते मैं रात को सो गया तो कहीं कुछ लोगों ने मिर्ज़ा साहब को यहाँ पर मेरी ब्राड पे मेरे सोए हुए वो गालियाँ शालियाँ दी। वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता वो कौन थे और किसने गालियाँ दी, लेकिन तलत साहब कहते हैं मैं सो गया, ब्राड चढ़ गई उनके हत्थे, तो उन्होंने तौहीन की हमारे काबरीन की। मैं उठा तो मुझ पे काले ही काले मोबाइल पे आई हुई थी। तो मुझे पता लग गया कि कोई नवा कट्टा खुल गया है। तो मैंने फिर जब पूछा तो पता चला कि भाई हमारे काबरीन की तौहीन हो गई आपकी ब्राड पर, आप ब्राड लगा के सो जाते हो, शर्म करो, ऐसा और वैसा उसको खूब सुनाई है मलक तलत को इन्होंने, मिर्ज़ाइयों ने। ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो गई, कोई परवाह नहीं। मिर्ज़ा साहब की तौहीन हो जाए, ओ मलक तेरी ऐसी थी तैसी, तू ब्राड लगा के सो जाते हो, मिर्ज़ा साहब को गालियाँ पड़वाते हो। ये है इनका मयार।
اللہ کے سچے نبیوں کو گالیاں پڑھتی رہیں یا یہ دیتے رہیں، کوئی سزا نہیں اس کے لیے۔ ہادی علی چودھری نے کتاب لکھی ہے، لیکن مرزا صاحب کو یا مرزا صاحب کے بیٹے کو گالی پڑے تو پھر تو قیامت آ جانا چاہیے، مار دینے چاہیے جتنے لوگ گالیاں دینے والے۔ یہ ان کی نظریہ اور سوچ ہے۔ کل ضیاء بھائی وہاں پہ موجود تھے، تو ضیاء بھائی نے ایک عبارت پڑھی کہ ایک عمارت کی آخری اینٹ کے بارے میں نا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس عبارت کا انکار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ میں انکار کرتا ہوں، میں قسم کھا کے انکار کرتا ہوں۔ وہ ضیاء بھائی چپ کر کے بیٹھے رہے، ضیاء بھائی بار بار پڑھی جا رہے، کہتا یہ کہاں سے لیا آپ نے عبارت، یہ جھوٹی عبارت ہے۔ بڑی دیر بعد ضیاء بھائی نے کہا کہ یہ تو مرزا صاحب نے کیا ہے، کہنا ہے ساتھ ہی گیئر چینج۔ مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ ضیاء بھائی کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، تو حدیثوں کا تو انکار کرنا ان کا پٹخ کے مارتے ہیں، کہتے ہیں میں پٹخ کے ماروں گا ایسی حدیث کو جو میرے قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول آویں، قرآن کہہ رہا ہے رسول آویں، اور یہ حدیث خلاف جا رہی ہے، آخری اینٹ ہو ہی نہیں سکتی، وہاں پہ رسولوں کے آنے کا ذکر ہے۔ بعد میں پھر ضیاء بھائی نے کہا کہ نہیں چلو صاحب ایک گل مرزا صاحب دیجئے، ہن دسو کی کرنا ہے، ہن پٹکھنی ہے یا کی کرنا ہے؟ کتنے 100 بندہ نیچے بیٹھا ہوگا سن رہا، کسی بندے نے آ کے نہیں کہا کہ اس بندے نے جب حدیث کی بات، جب یہ حدیث سمجھ رہا تھا اس بات کو تو یہ انکار کر رہا تھا۔ بعد میں کہتا دیکھیں میری بات سنیں، اس کا پورا پھر جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ بات کس نظر سے کہی گئی، کس طریقے سے کہی گئی۔ تو یہ حدیث کا انکار کر دیں گے، اپنے خلیفہ کی کسی بات کا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہنشاہ صاحب جی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی تو بیچ میں تھوڑا سا میں سو بھی گیا تھا۔ نہیں میں نے تو میں ہمیشہ بہت مختصر بات کرتا ہوں۔ اچھا چلے پھر مجھے غلطہ لگا ہے۔ نون صاحب سن رہے ہیں؟ حضرت نون صاحب جی میں سن رہا ہوں محترم جی۔ بھائی دیکھیں، 2 بروڈ ایسے ہیں، 2، ایک طلعت جی کی اور ایک وعلیکم السلام۔ میں ملک عمران ہے، میں میوٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے اتار دیا، ان کا مائک آن تھا تو اتار دیا۔ اچھا، دو بروڈ ایسے ہیں، ایک ملک صاحب کی طلعت جی جن کو آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک کیا نام ہے ان کا، سردار اعلیٰ، نام ذہن سے نکل رہا ہے، حسینی جی۔ اگر آپ نے اپنے اکابرین پہ گالیاں اور لعنتیں لینی ہیں تو ضرور جائیں، آپ نے نہیں، کسی نے، کوئی بھی دھرم کا ہو۔ تو یہ طلعت جی کی یہ ہے کہ طلعت جی خود گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں کیا ہیں، واللہ عالم۔ تو گالی دینا ان کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں ہے، چٹکی بھر ایسی گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اور حسینی جی دوسروں سے گالیاں پڑھوائیں گے۔ یہ ہیں 2 بروڈ۔ اور رہی بات طلعت جی کی، ان کے پاس کوئی بھی کیا علمی شخصیت ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ وہ خود مانتا ہے، نہ مرزا جی کی کوئی کتاب انہوں نے نہیں پڑھی، نہ قرآن نہ حدیث۔ فہم، آپ ان کے فہم لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے فہم کے ساتھ، دیکھیں وہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ جب بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کچھ لوگ جو ملحدین ہیں، تو وہاں تو وہ کہہ دیتا ہے کلا ڈلا یہ نماز نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے، یہ تمام ایک پتہ نہیں بس۔ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لڑکیوں سے کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کوئی دیندار شخص نہیں ہے، ان کو ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا بچیں، زیادہ بہتر ہے۔ کوشش تو کی ہے لوگوں نے کہ، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اس عادت کو، مجبور ہے، دلیل نہیں ہے، جہاں دلیلیں ختم ہو جائیں وہاں شور شرابہ کرو، گالیاں دو۔ تو تھوڑا سا آپ بچیں، اس طرح کرتے کرتا ہے سب کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آپ کے اکابرین کو گالی دی، بھئی مسلمانوں کے
उम्महातुल मोमिनीन, वो सब वो कोई परवाह नहीं करता। मिर्जा जी की भी ऐसी की तैसी कर देता है। क्या आप समझे क्या है? तो वो इस तरह की हरकतें करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई तलत जी ठीक है, इंसान है, ऐसे नहीं कि बात नहीं करना, लेकिन बात हो ही नहीं सकती, सीधा गाली पे आ जाता है। थोड़ा खुद बचे ज्यादा बेहतर है, कोई इलाज नहीं। आमिर नज़ीर ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं। कभी इनसे गलती हो गई, हमसे भी होती है भाई, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि ये गालियां बर बर के पूरा कुला डुला ना दे दे, ऐसे कोई टाइम नहीं गुजरता। तो ये है उनकी आदत। अच्छे और हम माजरत हैं, आपको तकलीफ हुई है, सबको तकलीफ होती है। और हजरत सलाम वो तो अल्लाह पाक के बरगद भी हैं। अगर यहाँ पर कोई आए हमारे नबी को गाली करे, हम मरता मर हजरत को जवाब नहीं दे सकते। कर रसूल, ये सब पे हमारा ईमान है। आप कुछ भी किसी को गाली दे दें, हो सकता है मैं आपके किसी खबर को, लेकिन हजरत ईसा को कोई मर जाएगा गाली नहीं देगा, जवाब नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। ये आप अच्छी तरह से जाए हजरत नूह साहब। अल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी नवाज, बड़ी नवाज। जी वाटर साहब बात कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब, मेरा सवाल हजरत नूह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए, मौजूद। हाँ जी हजरत नून भाई, पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हैं? आप क्या उनको नबी मानते हैं? ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। साथ मेरा ऐड कर ले, क्या गालियां तो नहीं देते आप? अच्छा अगर जी, नहीं मानते तो मेरा दूसरा सवाल हजरत नून भाई से ये है कि आपने अभी बैठे बैठे जमात अहमदिया के काबरीन को गालियां दे दी हैं, तो जवाब में ना मैं आपको गाली दे रहा हूँ, ना तारिक चौहान ने आपको गाली दी है, तो आपको फ़र्क पता लग गया है ना? गाली एक इल्ज़ामी तौर पे जो जवाबन जो है वो उस पर लानत की है, जो कि वाजिब है। आप भी बता दीजिए कि आप मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब को हज़रत ईसा के साथ कंपेयर करते हैं? तो बस बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और मेरे पर भी वाजिब हो गया कि मैं अब आपको गाली दूं? ये आपका हुस्न अखलाक होगा, अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। अच्छा, तीसरी बात ये कि तलत मलिक साहब, सर आप लोगों के दोस्त हैं, वो एक महीने में कम से कम भी जो है ना 400 घंटे आप लोगों के साथ ही बैठे होते हैं, तो उनकी गालियों का इल्ज़ाम हम पर ना लगाए। हम जमात अहमदिया के लोग कोई गालियां नहीं देते। जी, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन मैंने जमात अहमदिया के मोहतरम जो भाई हैं उनको बताया है कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम बदज़बान इस्तेमाल करें, ना ये हमारी तरबियत है, और हम इसकी नफ़ी करते हैं इस तरह के अमल की। लेकिन चंद शरपसंद अनासर जो है वो लो लेवल तक जाके मजबूर कर देते हैं शरीफुन नफ्स इंसानों को कि वो भी जो है उस हद तक जाएं। ये आपका तरीक़ाकार जो है ना, ये बिल्कुल गलत है कि फ़लाने ने हमें मजबूर कर दिया तो हमने उसको गाली दे दी, फ़लाने ने मजबूर कर दिया तो हमने थप्पड़ मार दिया, फ़लाने ने मजबूर कर दिया। जब आप जुर्म कर बैठते हैं तो आप जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। उसने आपको उकसाया, आप बंदा कत्ल कर देंगे, ये कोई आपकी दलील में कोई सबूत नहीं है। और मेरा सवाल पहला यही है कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कुछ नहीं मानते,
तो ये लोग आपको इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो अपने इन मुसलमान भाइयों की समझ नहीं आ रही कि ये अहमदियों के खिलाफ हर उस बंदे को उठा कर ले आते हैं जो उनको यार गालियां दे। आपने इतनी बातें कर दी, आपको ईसा अलैहिस्सलाम का जरा भी फिक्र नहीं है? अभी भी आपने नहीं कुछ यार भी बोला? ह्यूमैनिटी, आपने मेरे से बात नहीं करनी। नहीं, आप आपने ना बात क्यों नहीं बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हुई है तो हम माजरत चाहते हैं? आपने क्यों नहीं अभी बोला? वाटर साहब आपसे एक थोड़ा सवाल है बहुत यार हया शर्म की कोई नाम की चीज होती है। बस कर दे यार, मैंने तुमसे बात नहीं अरे हयाओं में मैं नाले ये ईमान है। हजरत हया नून से ईमान बात पे कर है। रहा हूँ। और यार वो रसूल अल्लाह को मानते ही नहीं है, वो रसूल अल्लाह को मानते ही नहीं है। आप लोग फिर भी जो है वो क्या करते हैं? वो दे रहे और भाई इस वक्त नहीं ना दे रहे, क्योंकि उनकी आपको आपने ईसा अलैहिस्सलाम जरूरत है। मुतल्लिक कोई दुख नहीं है जो उन्होंने बोला है, उस मुतल्लिक क्यों नहीं आप में बोल रहे? यार सुना दे मुझे, कोई भी नहीं बोला उन्होंने, आज तक नहीं बोला हमने कभी किसी के खिलाफ। सवाल करना है। कोई बात नहीं, मेरे मुझे थोड़ी सी बात हुक्म करें, सवाल करें जी, सवाल करें। एक मिनट बोलें जी। वाटर साहब सुनो। ओके बात यह है कि आपने कहा कि ये रसूल को नहीं मानते और जो भी अहमदियों के ख़िलाफ़ हो आप लोग उठाते हैं। भाई यहाँ कोई भी आए ख़िलाफ़ हो या दोस्त, देखिए चौहान जी हैं मौजूद हैं और भी आपके अहमदी आते हैं, सबको हम उठाते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपके ख़िलाफ़ है हम उठाते हैं, नहीं नहीं नहीं। कोई सिख भी आए हम उठा लेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी नहीं मानते, लेकिन हम हज़रत ईसा को तो नबी मानते हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम ये बात कर रहे हैं जिसने हज़रत ईसा को गाली दी वो इंसान कहने के लायक नहीं। गालियां मैं दे सकता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि फायदा नहीं, समझ रहे? पीर साहब गाली दी है हजरत ईसा को, मैंने तो आज तक जमात अहमदिया में नहीं देखा। बात तो सुनिए भाई, थोड़ी सी बात सुनिए। नून साहब इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं, एक शरीयत को मानने वाले हैं। वो नहीं मानते आखिरी रसूल को, हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन वो नहीं मानते हम उसको गालियां दें? नहीं। अच्छा, अब अगर वो गालियां दे हम जो है हजरत ईसा को जवाब दे दें? मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने ये कहा है, हम तो इस बात का इंसान, और मैंने ये कहा कि तलत ऐसा इंसान है वो मिर्जा जी को भी गाली देता है। ये मैंने कहा, मैंने सुना है, लानतें करता है, वो गुस्से में आ जाए उसको कुछ भी करता है। तो मैंने तो ये कहा था, आप क्या हमारे खिलाफ नहीं हैं? क्या हमने आपको नहीं उठाया भाई? इंसानियत के नाते हम आप भाई हैं, लेकिन शरीयत के नाते बिल्कुल नहीं, हमारा उनसे इख्तिलाफ है। चूंकि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानता, अब उस पर ज्यादती हुआ है और ऐसे एक शख्सियत पर ज्यादती हुआ है कि वो हमारे लिए मुहतरम है। वो तो हमारा एक सर ज्यादती हुई क्या है हजरत? वो सर क्या ज्यादती हुई है? गालियां दी है ना, उसे गालियां दी है तलत जी ने। सर किसने गालियां दी हैं? किस सर? तलत जी तो आप लोगों के दोस्त हैं, तलत जी को तो हम जानते भी नहीं है। पीर साहब एक मिनट मौका देंगे, जो चीज है वो आप मिस कर रहे हैं। हम मानते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी किया तलत ने। किसने हजरत ईसा की गुस्ताखी की है? हजरत नून कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने हजरत ईसा की गुस्ताखी की है। खलीफा मसरूर ने भी की है। साहब आपने गुस्ताखी की? अरे नहीं, वाटर साहब ने की है। कैसे सर? कितनी बार हम आपको कहे वाटर साहब आपके साथ ठीक है, आप समझदार आदमी हैं, वो सवाल मत करें जिसका कोई तुक नहीं बनता। आपको कहा है कि तलत अवान ने, आप जानते भी क्या, वो तो आप लोग का दोस्त है, बाद में कहते गाली दी। ऐसा मत कीजिए, उसने ज्यादती किया है, जुल्म किया है, वो कोई भी हो भाई, हम उसका मजम्मत करेंगे, गालियां नहीं देंगे, क्योंकि हम आप ये लोग जो अंबिया रसूल को गालियां देते हैं वो तो मुज़ब्बत के भी काबिल नहीं होते, तलत मुतमत काबिल नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि आप तलत के बारे में बात कर रहे हैं। भाई आप ये कहें कि ये ऐसा इंसान है कि ये मुज़ब्बत के भी काबिल नहीं। बस सर, फिर आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं और इकट्ठे ब्रॉडों में बैठते हैं, आप तलत का ब्रॉड पे आना बैन कर दें। आप सारे लोग, आप क्यों उसको उठाते हैं? सब भाई उसको उठाते हैं, आप खुद भी जाते हैं उनकी ब्रॉडों पे, तो फिर ना जाया करें। बाइकआउट करना है तो मुकम्मल बाइकआउट करें अगर वो इतना बुरा इंसान है तो। और आज ही आप सारे के सारे उसकी ब्रॉड पे बैठे होंगे।
पीर साहब 1 मिनट इजाज़त है? जी जी आप बात कीजिए भाई। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा वाटर भाई, असल इशू जो है ना पीर साहब भी मिस कर गए हैं, ठीक है? हुक्म करें सर, हुक्म जो बात करें। मेन है ना जी, मेन जो चीज़ है कि हज़रत नून साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि मौजूदा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहिब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत बांधी है कि वो शराब में कुछ अल्फाज बोल गए, ठीक है? यार मैं शराब हर के नशे में अच्छा जी अच्छा शराब के नशे हाँ में उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मैं वापस आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है।